I, Sanil Sanger, the president of NISHTA, the Civil Services Society of Hansraj College, extend my hearty welcome to our honorable and renowned chief guest speaker, Mr. Nishant Jain, IAS, respected principal, Professor Dr. Rama Madam, our esteemed convener, Dr. Mahendra Prajapati Sir, and the lovely audience for gracing and adding luster to the opening session of our 7 days flagship event for the session 2021-2022, lovingly named Avikshit, with their radiant and cheerful presence. NISHTA, an innovative and one-of-a-kind society of Hansraj College, is acclaimed to provide a vibrant platform for fervent civil services aspirants to converge and converse. Being one of the most esteemed societies of Hansraj College, NISHTA holds the honor of hosting many incredibly prominent personalities in and around the field of civil services. Treasuring the motto of NISHTA Dhriti Satyam, the society is a paragon of the values of truth, steadfastness, and dedication. With this unparalleled flagship event of ours, we aim to cater the needs and demands of the CSE aspirants holistically by bringing for them 7 erudite and scholarly speakers and personalities from the wide spectrum of services which this profession proffers. So everyone here, before just beginning, I would like to say that whatever you do it happily, keep yourself engaged, and keep enjoying. Do not lose hope by listening to the words of pessimistic people around. It's a world which has no scarcity of hope and optimism, for it's always green in one way or the other. On this note, I feel exuberantly joyful to announce that to expatiate on the topic, "Don't You Quit, the Magic of Untiring Efforts," we have with us a person who believes that success is not a destination, but the beginning of a new journey instead. Mr. Nishant Jain sir is currently posted as the Honorary Director of Rajasthan Tourism. An MPhil in Hindi literature from Delhi University, sir has rendered his services in various departments of the Government of India. Being a Hindi medium aspirant, his incredible journey of bagging All India rank 13 in the UPSC CSE 2015 at the age of 28, after successfully fighting against all the odds, is a testament to the fact that age is just a number for the examination, but it is the consistency and willpower manifested by us that becomes the determining factor of our triumph in this examination. Sir has also authored a number of best-selling books, including Ruk Jana Nahi, Mujhe UPSC Topper Banna Hai, All About UPSC CSE, and several others, which are imbued with valuable pieces of advice on personality development, stress management, positive attitude, and life lessons for personal and professional life, while also enlightening the aspirants with all the facets of this examination. I wholeheartedly welcome you, sir, on behalf of NISHTA and Hansraj family, and I request you to kindly take over the forum and initiate your address. Thank you, and over to you, sir. Thank you so much, Sanil. Thank you, NISHTA सोसाइटी जो हंसराज कॉलेज की सिविल सर्विस सोसाइटी है। और अभी आपने जैसा बताया कि प्रिंसिपल मैम भी सुन रही हैं, प्रोफेसर रमा मैम, और कोऑर्डिनेटर है महेंद्र प्रजापति, और बाकी सारे लोग जो अटेंड कर रहे हैं। 340 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी मैं देख रहा हूँ। तो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा ओकेजन है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है DU आना, क्योंकि फिजिकली हम लोग नहीं, पर हाँ वर्चुअली हम लोग मिल पा रहे हैं। और जल्दी कोई अगर फिजिकल इवेंट होगा तो अच्छा लगेगा, इस बहाने नॉर्थ कैंपस में घूमने का मौका मिलेगा। तो आई एम रियली हैप्पी कि DU में भी हंसराज कॉलेज के इस इवेंट में मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा जितना मेरा जनरली एनर्जी लेवल रहता है उससे थोड़ा कम रहेगा आज, तो उसके लिए आप थोड़ा बियर कर लेना, पर मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ताकि टेक अवेज जो हैं आज की बात के वो आप ले जा सकें। और मैं चाहूंगा कि मैं शुरू में 15 मिनट्स के आसपास बोलूं, उसके बाद वी विल मेक इट ए कंप्लीटली इंटरेक्टिव सेशन, जहां पे आप लोगों की क्वेश्चंस जो चैट बॉक्स में आएंगे, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन नॉट ओनली रिलेटेड टू टॉपिक पे ही करें, ऐसा जरूरी नहीं है। यूपीएससी, बियॉन्ड यूपीएससी, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, वो आप चैट बॉक्स में या जैसे भी इन्होंने रखा हुआ है ऑर्गेनाइजर्स ने, वहां पे दे सकते हैं। बाद में उस पर भी हम आराम से बात करेंगे।
जैसा कि मैं अपनी बात को अगर थोड़ा शुरू करूं, टॉपिक हमने आज का रखा है डोंट यू क्विट द मैजिक ऑफ अनटायरिंग एफर्ट्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये वैसे मेरी बुक का टाइटल का भी नाम यही है, जो रुक जाना नहीं मैंने लिखी है हिंदी में, और इंग्लिश में उसका ही इंग्लिश वर्जन वेस्टलैंड से आया है, डोंट यू क्विट द मैजिक ऑफ अनटायरिंग एफर्ट्स। बेसिकली क्या होता है, हम लोग जिंदगी की दौड़ में, खासकर जो ये वाली एज है जिसमें अभी आप लोग सनील हैं, आप सब लोग जिस एज में हैं, वो दोनों तरह की बातें हैं। मतलब वो मस्ती की एज भी है, करियर को बिल्ड करने की एज भी है। उसी समय जो आप करेंगे वही आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। आज जो आप मेहनत करेंगे वही आपकी कल काम आएगी। तो दोनों बातें हैं। तो हमें इन दोनों में कैसे एक कॉम्बिनेशन बैठाना है कि हम करियर की राह पे पीछे ना रह जाएं ज्यादा मस्ती के चक्कर में, और हम एक डल भी ना बन जाएं कि केवल पढ़ते 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 और कोई बहुत ही एक डल से हो जाए और लाइफ को अच्छे से हैप्पीनेस के साथ ना जी पाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगले 10-15 मिनट में। और अगर आपको अच्छा लगे कोई बात तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस फोरम पे, और ये केवल यूपीएससी की तैयारी में नहीं है, ये पूरी जिंदगी में हमेशा काम आता है, खासकर इस उम्र में। हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डिमोटिवेशन आते हैं तरह तरह के। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैमिली की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, या कोई रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कोई इकोनॉमिकल या इस तरह की भी कुछ बच्चों के साथ दिक्कतें आती हैं। प्लस आप जब कोई एग्जाम में अपीयर होते हो या अपीयर होने का प्लान कर रहे होते हो, उसमें अगर आप किसी फेज में गलती किसी कारण से नहीं सक्सेसफुल हो पाते हो, तो उस फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते हम लोग, और कई बार उसके चक्कर में हम लोग थोड़ा एंग्जाइटी और थोड़ा डिप्रेशन की ओर भी जाने लगते हैं। थोड़ी सी बात मैं मेंटल हेल्थ पे भी करूंगा आपके साथ। तो एक तो मैं ये कहना चाहता, मेरा पहला पॉइंट है आज का, जो मैं आज एक सूत्र कुछ देना चाहता हूँ। 4-5 सूत्र मैंने सोचे हैं जो मैं आज आपसे बात करूं। पहला पॉइंट मेरा है कि साथ निभाएं एक दूसरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प से ही आगे बढ़ते हैं। आज अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज का आविष्कार किया तो वो अकेला उसको थोड़ी यूज कर रहा है, वो पूरी सोसाइटी पूरी कम्युनिटी उसको यूज करती है। तो इसी तरह से हम लोग सब एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। तैयारी के दौरान भी अगर आपने कोई अच्छी चीज पढ़ी है तो आप ग्रुप डिस्कशन जब करते हैं तो वो चीज दूसरों को एक्सप्लेन करिए। उससे क्या होता है कि व्हेन यू टीच समथिंग और व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग, सो वो आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी चीज को, कोई चीज जो आपको आती है आप किसी से शेयर कर लेंगे तो आपको कोई नुकसान होगा, उल्टे उससे फायदा होता है। तो मैं ये एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि तैयारी के पूरे प्रोसेस में जो चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं वो आप दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो किसी दूसरे फ्रेंड की जो चीज ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है जिसकी उसमें जिसमें उसकी, वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आप साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाली स्थिति। दूसरा पॉइंट मेरा है कि हम लोग बिजी रहते हैं, सब लोग बिजी रहते हैं, कोई खाली नहीं है। चाहे हम किसी न किसी, चाहे तो हम सोशल मीडिया में बिजी हो, चाहे हम इंस्टाग्राम देख रहे हो, चाहे हम फोन पर गप मार रहे हो, लेकिन बिजी हर कोई है, खाली कोई नहीं है। क्लासेस से फ्री हो गए तो फिर जो भी घूम रहे हैं व्हाटएवर। तो वो बिजी जो है वो कंस्ट्रक्टिवली थोड़ा खुद को बिजी रखना है। जब आपका जो शेड्यूल है वो जब पूरा हो जाए तो आपको जो चीज अच्छी लगती है वो करिए, पर उसमें एक थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। और एक चीज और है कि जो जो बंदा बिजी ज्यादा रहता है वो ही ज्यादा अच्छी चीज, ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाता है। जैसे कि 2 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो दिन भर कोई उसके पास एजेंडा नहीं है, मतलब कि सुबह उठ के करना क्या है आज अगले दिन, तो वो पूरे दिन उधेड़ बुन में, कंफ्यूजन में सोचते हुए निकाल देता है, ओवर थिंकिंग करते हुए। इसके बजाय एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने कोई अपनी पढ़ाई के साथ साथ और कुछ पार्ट टाइम जॉब या कोई उसने कुछ भी काम एक साथ में स्टार्ट किया हुआ है। वो बिजी रहता है रिलेटिवली ज्यादा, पर वो उसके बाद भी समय निकाल लेता है पढ़ाई के लिए। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये था कि कीप योर सेल्फ बिजी एज मच एज यू कैन, सो दैट आप
हर काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाए। मतलब मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि जो लोग ज्यादा बिजी होते हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही अगर आपसे आज बैठा हूँ तो अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले जब सनील ने कहा कि सर आप अपने माइक को एडजस्ट कर लीजिए तभी आपका सेशन स्टार्ट हो पाएगा, तो अभी तक मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो अभी मैंने बोला 1 घंटे कोई अंदर नहीं आएगा क्योंकि सेशन चल रहा है। तो बेसिकली मैं भी तो समय निकाल ही रहा हूँ ना अपने काम के साथ। तो इसलिए जो आदमी लगातार खुद को बिजी रखता है वो फिजिकली और मेंटली ज्यादा एक्टिव रहता है, हेल्दी रहता है, उसका जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज है वो अच्छे से कर पाता है और उसकी जो रिजल्ट्स है वो भी ज्यादा अच्छे आते हैं। तो इसलिए मेरा पॉइंट इज कि हैपहैज़र्ड मैनर में ना रहे, अस्त व्यस्त ना रहे, व्यस्त और मस्त रहें, और व्यस्त रहेंगे तो खुश भी रहेंगे, इसलिए व्यस्त रहना जरूरी है, बिजी रहना जरूरी है, ऑक्यूपाइड रहना जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो मैं आज आई वांट टू मेक इज रीडिंग हैबिट। पढ़ने की आदत हमेशा से हम लोग सब बात करते हैं, कॉलेज में भी जब बात होती है या सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, सब जगह ये बात आती है। बट सच बताना आप लोग कि क्या वाकई में हम लोग रीडिंग हैबिट को थोड़ा मिस नहीं कर रहे हैं आजकल? क्योंकि वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया है। आई एम नॉट अगेंस्ट वीडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट आप आराम से देखिए, यूट्यूब देखिए, वट एवर, फेसबुक वॉच है, इंस्टाग्राम IGTV है, अच्छी चीज मिल रही है उसको दिखना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रीडिंग हैबिट, बुक्स की कॉस्ट पे नहीं। क्योंकि बुक्स से जो आपको नॉलेज और जो गहराई वाली नॉलेज मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। और बुक्स से जब आप बुक्स को पढ़ते हैं डायरेक्टली तो आप ज्यादा गहराई के साथ चीजों को समझ पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज रीडिंग हैबिट को फिर से अगर नहीं किया तो कल्टीवेट करें उसको। और जो लोग पहले पढ़ते थे कई सालों तक, अब आजकल दे आर गिविंग मोर टाइम ऑन यूट्यूब एंड वीडियो कंटेंट। तो वीडियो कंटेंट को मैं मना नहीं कर रहा, पर बुक्स वाला जो कंटेंट है, जो एक ऑफलाइन बुक्स, ऑफलाइन पढ़े या किंडल पे पढ़े, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट प्रिंटेड कंटेंट जो है, वर्ड्स जो है, बुक्स जो है, उनको पढ़े। जो भी आपको इंटरेस्ट जिनमें आता हो उनको पढ़े। चौथी बात जो मुझे आज कहनी है आपसे वो ये है कि हम सब लोग बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमें कई बार लगता है कि हम हर चीज को बहुत परफेक्टली करेंगे, विच इज ए गुड थिंग। अभी सेशन कर रहे हैं तो जो सोसाइटी है उसको परफेक्टली करना चाहिए, बट परफेक्टली करना चाहिए, अच्छी बात है, एक्सीलेंट तरीके से करना चाहिए, हर चीज में एक्सीलेंस के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, गीता में कृष्ण ने कहा है योगा कर्मसु कौशलम, है ना? तो हमें अपने एक्शंस में एक्सीलेंस का प्रयास करना चाहिए, बट एक्सीलेंस इज ए गुड थिंग, परफेक्शन इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। परफेक्शन के पीछे पड़ के हम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम अच्छी चीज, मतलब कहने, एक कहावत है कि परफेक्ट से गुड अच्छा होता है, तो हम कई अच्छी चीजों को इग्नोर कर देते हैं परफेक्शन के चक्कर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तैयारी करनी है एग्जाम की, तो उसके नोट्स बनाने हैं, किसी टॉपर ने बोला नोट्स बनाने हैं, और वो सोच रहे हैं भाई साहब कि ऐसे अच्छे नोट्स बनाऊंगा कि वो नोट्स बना ही नहीं पा रहे हैं। ही इज नॉट इवन एबल टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स बिकॉज ही इज थिंकिंग, ही इज वंडरिंग कि जैसे नोट उस साल के टॉपर ने बनाए थे वैसे मैं बनाऊंगा। तो वैसा तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए स्टार्ट करें कहीं से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग की आप तैयारी करो, व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर देन यू रीच समवेयर, कहीं आप आगे पहुंचेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि परफेक्शन के चक्कर में ज्यादा नहीं भागे, एक्सीलेंस के पीछे भागे। तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन एग्जाम्स, नॉट ओनली इन कॉलेज, बट की लाइफ के हर स्फेयर में आप सक्सेस प्राप्त कर पाए। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो मुझे आज शेयर करना है आपसे, इसके बाद क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, आपके सारी बातें करेंगे, जो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं मुझे, और मैं बार बार उनका जिक्र करता हूँ। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जो कि इंडियन फिलॉसफी से लिए गए हैं, जो मुझे बहुत, जिन्होंने मदद की लाइफ में, और मुझे लगता है आपको भी वो 3 प्रिंसिपल्स जो है इंडियन फिलॉसफी के बहुत ज्यादा मदद करने वाले। नंबर 1 इज निष्काम कर्मयोग ऑफ गीता, जो ये कहता है कि आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस वो श्लोक है गीता का, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्म। इसका मीनिंग हम सब थोड़ा समझते हैं कि भाई जो एक मोटे तौर पे समझा जाता है कि
कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो. डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स, जस्ट डू योर एक्शंस, जस्ट आप उसके साथ अपना लगे. बट यंगस्टर्स सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि भाई अगर कोई फल की इच्छा ही नहीं है, फ्यूचर का कोई अपने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, तो फिर हम तैयारी करें कैसे, मोटिवेशन क्या हो. तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि डू योर बेस्ट, गिव योर 100% विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट. परिणाम नतीजे में आसक्त हुए बिना अपना बेस्ट करो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, अभी प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत सारे लोग इस बार फेल भी हो गए हैं, बहुत टफ आया था. बट तो प्रीलिम्स का एग्जाम दिया आपने, एग्जाम देने के बाद आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा अटैच हो गए रिजल्ट में और आप मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे हो ये सोच के कि मेरा क्लियर हो गया या नहीं होगा. अगर आप एक बार जब जब आपने अपना बेस्ट दे दिया तो उसके बाद आप थोड़े दिन सोचो कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया, अब लेट द रिजल्ट बी अनाउंस्ड. उससे पहले आप स्टेबल करके अपने माइंड को आगे की तैयारी करो. तो ये एक एग्जाम्पल है कि निष्काम कर्मयोग को अपनी लाइफ के हर मोड पे आप यूज कर सकते हैं. गीता का निष्काम कर्म. सेकंड जो प्रिंसिपल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है वो है जैनिज्म का अनेकांतवाद. अनेकांतवाद विच मीन्स रेस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज, विच मीन्स एक्चुअली अनेकांतवाद को अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इट मीन्स नॉन एब्सोल्यूटनेस. इसका मतलब है कि कोई भी चीज पूरी तरह, कोई भी जो एक तरह से कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी कथन है वो पूरी तरह सत्य नहीं हो सकता. उसके ट्रुथ जो है वो मल्टीफोल्ड, मैनीफोल्ड होता है. अगर आप ये चीज समझ लेते हैं कि जो नजरिया है, अलग अलग तरह से हम किसी चीज को देखते हैं और अगर हम अलग अलग नजरियों से उसको देखें तो हम पाते हैं कि वो लार्जली एक बड़ी चीज है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गाइज मस्ट हैव हर्ड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिफेंट एंड 7 ब्लाइंड मैन अराउंड द एलिफेंट. सो वो 7 जो ब्लाइंड पर्सन थे वो हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करके और उसको अलग अलग समझ रहे थे. जैसे कि जो हाथी के कान को छू रहा था वो उसको एक झाड़ू समझ रहा था, जो हाथी की पंखा समझ रहा था, और जो हाथी की पूंछ को छू रहा था वो उससे झाड़ू समझ रहा था. 7 लोग अलग अलग तरह से हाथी को परसीव कर रहे थे. लेकिन सच में ऐसा नहीं था. सच में तो हाथी एक पूरी यूनिट है ना. तो ये अनेकांतवाद हमको सिखाता है कि किसी भी चीज को उसके सारे एस्पेक्ट्स के साथ देखना, ब्रॉडर व्यू के साथ देखना, वो इंपॉर्टेंट है. अगर हम ऐसा कर लेते हैं लाइफ में, देन वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स. अदरवाइज व्हाट हैपेंस टू अस कि हम अपनी अपनी गाते रहते हैं और अपना ही अपना कि मैं ठीक कह रहा हूं एंड यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. सो इट्स टोटली एरोगेंट. मतलब इट्स डजंट इट साउंड सो एरोगेंट. तो प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज आल्सो, व्हिच अनेकांतवाद teaches us. This was the second principle which I was talking about, and the third principle which I want to share with you is madhyam marg, middle path of Buddhism. Sometimes in life दो एक्सट्रीम्स होती हैं और उन दोनों एक्सट्रीम्स पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि, तो वहां पे गोल्डन मीन जो बुद्धा ने बताया विच इज द मिडिल पाथ. आप वहां पे बीच का रास्ता निकालें जो एक विन विन सिचुएशन हो दोनों पक्षों के लिए और उसको फॉलो करें. फिर देखें आपकी कैसे वो इश्यू रिजॉल्व हो जाता है. ये नेगोशिएशन में, कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने में बहुत मदद करता है. तो ये भी लाइफ में, करियर में बहुत काम आता है आपके. आप देखेंगे जब भी कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो वाई टू टेक वन एक्सट्रीम व्यू और वी शुड ट्राई टू अवॉइड बीइंग फंडामेंटलिस्ट. तो वो सब चीजों में हमारे ये मध्यम मार्ग और अनेकांतवाद हमारी मदद करते हैं. तो ये 5 बातें थी. मैं इनको एक बार ऐसे ही रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए. एक तो लेट्स हेल्प वन अनदर, साथ निभाएं एक दूसरे का. दूसरा पॉइंट है कि हैपेजार्ड मैनर में अपना काम ना करें, ऑर्गेनाइज्ड फैशन और ऑर्डरली फैशन में अरेंज तरीके से अपना काम करें. अस्त व्यस्त ना रहे, व्यस्त और मस्त रहे. तीसरा है रीडिंग हैबिट पे ध्यान दें. केवल टेक्स्ट बुक्स ही ना पढ़े, साथ में कुछ आउट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ चीजें पढ़े. चौथा है परफेक्शन के बजाय एक्सीलेंस के पीछे भागें. और पांचवा, जो 5वें में 3 पॉइंट शामिल है, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ विच आर फ्रॉम इंडियन फिलॉसफी. So these were the points which I wanted to make in this session.
the magic of untiring efforts. And I am open for any question, anything, whatever you want. Thank you. Thank you so much, sir, for guiding us with these principles. And as of now, we have few questions. Maybe before starting with the questions that we have already got from the students in the Google form, there are some in the chat box. So maybe I'll just read them out for you, and you could answer for the audience. Yeah. So the first question is from an anonymous attendee. It says, how to be confident in interview when you are nervous? When you are nervous. Okay. So it happens with everyone, boss. Everyone is nervous while entering the interview boardroom. So इसका तो सिंपल सा फंडा है कि एक तो अभी जो मैंने बताया था निष्काम कर्मयोग वाला कि do your best, don't get attached to the result. ये तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि इंटरव्यू देने में जाऊंगा तो मैं सेलेक्ट होना ही है, मुझे ऐसा ना हो जाए कि मुझसे कुछ हो जाए, उस चक्कर में हम फालतू में नर्वस हो जाते हैं। जब आपने सारी तैयारी कर ली है और जरूरी थोड़ी है कि जो आपने बाई चांस तैयार नहीं किया है वही पूछा जाएगा अंदर। सो अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके जाओगे तो आप उन सवालों के जो, क्योंकि सारे सवाल जो है अनएक्सपेक्टेड ही होंगे, अनएक्सपेक्टेड सवालों को हैंडल करने के लिए माइंड में थोड़ा कंफर्टेबल होना, कूल होना जरूरी है, ना कि नर्वस होना। सो उसकी कुछ दूसरी टेक्निक्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप योगा करना, थोड़ा स्लीप अच्छे से लेना, वो है। और साथ में आई थिंक यू मस्ट हैव ए गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि आपको एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, और जो कि मैंने साथ निभाए वाली बात भी कही थी, ताकि एक दूसरे के खराब, जब हम एक दूसरे को डिमोटिवेटेड पाते हैं तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ना, तो वो भी एक जरूरी चीज है। इसलिए इंटरव्यू के टाइम आप हो सके तो किसी एक अच्छे फ्रेंड को जो अच्छा हो, पॉजिटिव, उसको साथ ले जा सकते हैं बाहर तक के लिए, एंट्री गेट तक के लिए। मतलब कुल मिला के नर्वस नहीं होना है किसी भी कीमत पे, हैप्पीनेस के साथ इंटरव्यू देना तो अच्छा इंटरव्यू जाएगा। Thank you, sir. So there's another question which says that what is your opinion on plan B, and should we first look for our plan, that is plan B, or we should give 2 years of sincere preparation for the UPSC examination? प्लान बी केवल सोचने के लिए, करने के लिए नहीं है। मैंने प्लान बी को मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि इन केस योर प्लान बी का मतलब ही है कि इफ प्लान ए डजंट वर्क देन प्लान बी कम्स इनटू पिक्चर। If plan A works successfully, then what is the need of plan B? But we have to think in our own mind, and maybe we discuss with our friends or family that if my plan A doesn't work and I get to realize later that this is not my cup of tea, then how do I go ahead in my life? Or in case I don't get success in any of the attempts of any exam, then what will I do? So here comes plan B. सो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्लान बी बहुत जरूरी है। मैं तो खुद प्लान बी बना के ही चलता था। मैंने एमफिल किया था, अगर मेरा यूपीएससी में नहीं होता तो आई वुड हैव बिकम अ रिसर्च स्कॉलर, तो मैं था ही, तो मैं हो सकता है कि एकेडमिक्स के लिए ट्राई करता और शायद किसी कॉलेज में पढ़ा रहा, तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड करियर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि प्लान बी आप सोच के चलें। कोई आपका जो प्लान ए है, जो इसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो, जिसके लिए आपको ड्रीम है आपका, उसको प्लान ए बनाओ, लेकिन प्लान बी भी सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान ए को छोड़ के प्लान बी के पीछे भागने लग जाओ, वो तब पिक्चर में आएगा जब आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा होगा। Yes, sir. Sir, thank you so much for this as well. The other question is by Vikas Goyal and it says, sir, सिविल सर्विसेज की तैयारी एक लंबी जर्नी है, तो इसमें अपनी पढ़ाई में निरंतरता किस प्रकार लाई जा सकती है? सभी को बोर होने लगे तो बोरियत को दूर किस तरह से किया जा सकता है? ये तो इसका आंसर तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छा पता है यार, मतलब यंगस्टर्स को मुझसे ज्यादा पता है। मुझे मैं क्या बताऊं इसका आंसर, ये तो हम सबको पता है। बस ट्राई टू, वही मैंने बताया ना कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से ऑक्यूपाई करें खुद को। मैंने बताया कि अगर आप एक्चुअली थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोई यू कैन ज्वाइन सम 2-3 आवर्स, आप कोई किसी क्लासेस या कोई ट्यूशंस या कोई कोचिंग में पढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको जो कोई चीज अच्छी आती है, या फिर कोई कॉपी चेक करना, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो सब भी कर सकते हैं। कुल मिला के कि अगर आप बोर हो जाते हैं तो उसके लिए कोई तो आपकी हॉबी होगी, जैसे कि आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छा लगता है, आपको जिमिंग अच्छा लगता है, या फिर योगा अच्छा लगता है, या फिर वॉकिंग, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, व्हाटएवर, म्यूजिक, फिल्म, जो भी आपको पसंद है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट डू इट इन, मतलब कुछ उसका एक लिमिट बना के रखिए आप, और पढ़ाई को मेन ही रखना है।
इन चीजों को सेकेंडरी तरीके से आपको यूज करना है। Yes, sir. So there's one another question which says that what are, if you could give us, like, this is a person called Shahjahan, and he says that if you could give us some tips, especially for the Hindi medium students who are preparing for the UPSC examinations, what mistakes they generally do and how they should improve upon that. वेरी नाइस क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वालों के बारे में पर्टिकुलरली, बट इन जनरल सबके लिए ही मैं बता रहा हूँ क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम पहले, जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, करनी चाहिए, बट पहले दिन से नहीं करनी चाहिए। पहले तो पढ़ाई करो। आप पहले GS 1 2 3 4 के जो सेगमेंट है उसके लिए कुछ बेसिक ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो। NCERT पहले करोगे, फिर एक बेसिक हर सेगमेंट की एक एक बुक पढ़ोगे, उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करोगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम एक एक टॉपिक की बहुत सारी बुक्स ले आते हैं खरीद के। When we visit the market, we find so many books, so many test booklets, so many question banks. हम उन सबको खरीद के अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं, which is not a good thing. It is better to read one book for 10 times than to read 10 books for one time, which is an old thing. So please आप एक टॉपिक या एक सेगमेंट की एक अच्छी किताब खरीदें और उसको अच्छे से पढ़ें, उसको रिवाइज करें। एक तो ये गलती करते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि हम प्रैक्टिस, खासकर टेस्ट सीरीज नहीं लगाते कई बार, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, प्री की भी और मेंस की भी। कोचिंग की जहां तक बात है, तो कोचिंग में ऑप्शनल की तो लेनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में अच्छे गहरे लेवल की तैयारी चाहिए होती है। जीएस में आप बिना कोचिंग के भी काम चला सकते हैं, या फिर जीएस में केवल उसी सेगमेंट की कोचिंग ले जो आपको, जिसमें आपको इंटरवेंशन की हेल्प की जरूरत हो। ये नहीं कि फालतू में, if you can cover the polity, Indian polity from Lakshmikant book, then why to take coaching? पर टेस्ट सीरीज जरूर लेंगे। एक ही गलती करते हैं। तीसरी गलती करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं। भाई पहले प्रीलिम्स और मेंस करना है क्वालिफाई, बाद में इंटरव्यू के लिए इनफ टाइम मिलेगा आपको, 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, तब इंटरव्यू की तैयारी करना। अभी आप प्रीलिम्स और मेंस पर ही फोकस करो। चौथी गलती करते हैं कि प्री के 3-4 महीने पहले भी मेंस की तैयारी करते होते हैं, जबकि जब प्री नजदीक आ जाता है प्रीलिम्स, तो उस समय केवल प्रीलिम्स पर ही फोकस करना होता है लास्ट के 3-4 महीने। ऑप्शनल को बार बार चेंज करते हैं, वो भी एक गलती है। तो दीज आर सम मिस्टेक्स विच जनरली मेक। एंड अभी तो एक और चक्कर हो गया कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है हमारे पास। वी हैव so much स्टडी मटेरियल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, so we are not able to understand, we are not able to find out what to study and what not. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए वही मैंने आपको जवाब दिया कि जीएस के एक सेगमेंट की एक बुक पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज लगाएं। Yeah, thank you, sir, for these advices. There is this next question, which is by a person. He says that this is his personal question. He wants your opinion on this. So he says, I'm economically disadvantaged and would prepare through self-study only, and coaching is not even an option for him. So many people suggested him to prepare for other government exams, which are relatively easy to crack as compared to UPSC. And after getting a job, thereafter go for UPSC preparation. So he says that he wanted to prepare for UPSC and give some time to it, but he is very confused regarding that. So he just wanted your opinion, if you could guide him through. So actually, it's a nice question and very practical question actually, because I did the same thing. I took a job first, and then I could qualify UPSC with the support of that job. But it cannot be the case for everyone. ये सबके लिए अलग अलग है। आपको टाइम वही है, 21 की एज में आप एलिजिबल होते हो, 32 इज मैक्सिमम एज। इसी बीच में आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी, बैंक्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो उन सब की एज भी 27-28 तक होती है। तो ये आपको उस समय पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको साथ में एक दो एग्जाम को साथ में लेके चलना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में यू बिलोंग टू उत्तराखंड और राजस्थान और यूपी और बिहार, वटएवर, अपने स्टेट का स्टेट सर्विस एग्जाम भी आप दे सकते हो साथ में। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। दोनों तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सीधे यूपीएससी दिया और यूपीएससी क्वालिफाई किया, फिर इनको लगा कि अब यूपीएससी हो नहीं रहा है तो उन्होंने प्लान बी की ओर मूव कर गए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सोचा कि पहले हम एक छोटा एग्जाम क्रैक कर लेते हैं,
और फिर उससे कॉन्फिडेंस आएगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, फिर हम दोबारा यूपीएससी के लिए अपीयर होंगे। सब तरह के लोग हैं, आपको अपने अपने केस में कस्टमाइज्ड एडवाइस तो तभी दी जा सकती है जब मैं आपका पूरा प्रोफाइल देखूं, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। पर आपको अपने अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली की सलाह लेके फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। So there is one more question. I think this is by a fresher who have been sort of newly admitted into Delhi University, and he asked that so beginners अपनी preparation किस तरह start कर सकते हैं? He's just in the first year of his college, first semester. So how could he start his preparation? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। बिगिनर्स मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम जिसने 12th पास किया, मतलब वैसे तो आइडियल टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इज आफ्टर ग्रेजुएशन, but still if you want to prepare during graduation also, because we can spare some time for preparation during graduation as well. So I believe that during graduation you can do 2-3 small things. One is start reading a newspaper daily if you don't read as of now. So maybe you can pick the Hindu or Indian Express, whatever, और आप उसको डेली जो है 1 या 1.5 घंटा डेली उसको पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने एनसीईआरटी की सोशल साइंसेस की बुक्स पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी 9 से 12 तक की, उसको एक बार दोबारा पढ़ लें। एक काम ये करें। दूसरा, तीसरा काम आप ये करें कि आप जीएस के जो सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब की एक बेसिक बुक खरीद लें। और अगर आप पहले वाली दोनों चीजें कर लेते हैं जो मैंने बताई, नंबर 1 न्यूज़पेपर, नंबर 2 ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो आप इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। अगर आपने ये आदत अभी से डाल दी ग्रेजुएशन के दौरान कि आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन पढ़ने लग गए आप, तो आपको बहुत फायदा होगा आगे। और ये इट्स ए वेरी गुड हैबिट। ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तभी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तभी मैगजीन पढ़नी चाहिए, वैसे भी तो पढ़नी चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो स्टार्ट टेकिंग फन आउट ऑफ इट, मतलब आपको मजा आना चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ के कि देश और दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो मुझे पता चल रहा है, तो मैं इसको एंजॉय कर। इस तरह से आप अगर ये ग्रेजुएशन के दौरान ये 3 चीजें कर लेंगे तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपका इजी हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन के दौरान अगर हो सके तो अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लें, अगर हो जाए तो फाइनल ईयर तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। Yes, so thank you so much, sir, for this. So there is one question, like this is from a guy called Surya, and he says that what is the correct way to read a book and memorize the important details and concepts so as to retain it for a longer period of time? And he also added a short note that since there are a lot of books available, and we also go through previous questions as well as the syllabus which is there in front of us, but still it becomes difficult to sort of understand which portions to go through and which not. So what is the correct way of dealing with the book, and if you can give an example for that? Okay, so this is a question about which most of us think and wonder how do we do it, but ये सबके मन में आता है और इसका कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि ऐसे पढ़ना चाहिए किताब को। सो बस कैसे भी पढ़ें वो आपकी मर्जी है, सबका अपना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें। जितने भी समय पढ़ें तो आप उस समय आपका दिमाग सिर्फ उसमें ही हो तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। फिर बहुत सारे फंडे हैं इसके। कोई कहता है कि आपने आज पढ़ा तो फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करें, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करें, तब जाके पक्का याद होता है। अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। पर इतना जरूर है कि आपने जो आज पढ़ा है पूरे दिन, उसको एक बार अगले दिन सुबह सुबह एक बार अगर आप रिवाइज कर लें तो वो काफी अच्छे से सेटल हो जाता है। और संडे का दिन अगर आप पूरे हफ्ते का जो भी पढ़ा है 6 डेज तक का या 5 डेज तक का, उसको एक बार सैटरडे या संडे को रिवाइज करें तो वो एक्चुअली अच्छा रहता है। मैं तो करता था ऐसा, अच्छी चीज है। बट डोंट बी टू मैकेनिकल। ऐसे मैकेनिकली नहीं होता है कि बिल्कुल एकदम वैसे नहीं वर्क करता प्रैक्टिकली। Thank you, sir, for this. So there is another question by a girl called Sakshi Sharma, and she asked that is there any difference if one gives mains in English and interview in Hindi? No, it doesn't make much difference. There are many aspirants who appear in mains from English medium and then they
appear in interview with Hindi medium or maybe some other language medium. So it doesn't make much difference. So the other question is by Himani, and she asks which all journals, magazines, and newspapers would you suggest the aspirants to use for the reference, apart from the authentic books which are there? And also, how should one approach the CSAT paper? 2 questions. Okay. तो जर्नल्स की जहां तक बात है तो न्यूज़पेपर तो मैंने बता ही दिया. मैगजीन्स में विजन की एक मंथली बुकलेट आती है जो सबसे अच्छी अभी चल रही है, वो आप पढ़ सकते हैं. इसके अलावा योजना एक मैगजीन आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आप पढ़ सकते हैं. और भी पढ़ना चाहें तो कुरुक्षेत्र भी है रूरल डेवलपमेंट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन, वो भी आप पढ़ सकते हैं. साथ में एक एनुअल बुक भी आती है इंडिया ईयर बुक, वो भी पढ़ सकते हैं, उससे काफी चीजें पता चलती है. इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आपको पढ़ना चाहिए. तो ये कुछ चीजें हैं जो पीरियोडिकल्स हैं मंथली और एनुअली, इनको पढ़ना चाहिए आपको. दूसरा सवाल था सीसैट को कैसे टैकल करें. सीसैट ईयर बाय ईयर काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है, एज वी ऑल नो. उसमें कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा पार्ट है. कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने के लिए रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी जरूरी है, रीडिंग स्पीड अच्छी होनी जरूरी है. जब आप पढ़ते हैं खूब सारा तभी तो आप रीडिंग स्पीड डेवलप कर पाते हैं और कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं. इसलिए रीडिंग हैबिट इंपॉर्टेंट है. जो मैं कह रहा था आपको, बार बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ने, टेक्स्ट बुक के अलावा भी बुक्स पढ़ते रहेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी और आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. बाकी चीजें उसमें जो है वो थोड़ा सा बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक रीजनिंग होती है, तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सीसेट का आपको टेस्ट सीरीज लगा के टेस्ट देने पड़ेंगे. Yes, thank you so much for this. Then there is this question which is not related to the preparation per se, but it is about after getting selected into the UPSC Civil Service Examination. And the person asked that, can you please tell about life after clearing UPSC, like how a normal day looks for you and what major changes you think UPSC did to your life? आपने इससे पहले एक सवाल और पूछा था कि हम क्या गलतियां करते हैं तैयारी के दौरान. एक गलती ये भी है जो सवाल पूछा है इन्होंने कि हम लोग ना तैयारी सक्सेस के बाद, मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है उसकी ज्यादा चिंता करने लगते हैं, रादर देन अभी कैसे तैयारी करनी है और कैसे क्वालिफाई करना है उस पर ध्यान देने के. पर स्टिल इट इज अ वैलिड क्वेश्चन बिकॉज वी नीड सम मोटिवेशन कि व्हाट हैपेंस आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम्स और क्या क्या जिंदगी में बदलाव आते हैं. ठीक है, पर इस पे ज्यादा ध्यान ना दें. मतलब मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस लबासना के, एनपीए के चलते रहते हैं. मैं सोचता हूँ कि व्हाई आर वी सो क्यूरियस अबाउट लाइफ आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम. वी शुड बी फोकस्ड मोर अबाउट हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम. So still I would like to answer your question because it is a perfectly valid question. ऐसे कोई बहुत बदलाव नहीं होता है ना. हम जिस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उसको हमने क्वालिफाई कर लिया, फिर एक नई जर्नी की शुरुआत होती है. वो जर्नी थोड़ी चेंज इसलिए हो जाती है क्योंकि अब हमें और कोई एग्जाम नहीं देना होता, अब हमें सिर्फ जिसके लिए एग्जाम दिया था वो करना होता है. यानी पहले ट्रेनिंग में बहुत सारी तरह का एक्सपोजर होता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, इसमें 1 साल तक एकेडमी में रहते हैं, 1 साल तक फील्ड में रहते हैं. उसके बाद हमारी पोस्टिंग शुरू हो जाती है जहां एक्चुअली आपको डिलीवर करना पड़ता है. आपको जो काम, आपकी जो ड्यूटीज है उनको आपको उनका निर्वाह करना होता है, उनको निभाना होता है. तो बहुत जिम्मेदारी है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी से you remain too occupied so you remain happy as per my concept कि जितना आप बिजी रहते हो उतना आप हैप्पी भी रहते हो. तो कुल मिला के ये है कि इट्स क्वाइट चैलेंजिंग. इट्स नॉट दैट कि आपने क्वालिफाई कर लिया और आपकी सारी समस्याओं का अंत हो गया, नई समस्याओं की शुरुआत होती है. बट स्टिल इट्स गुड, इट्स वर्थ बिकॉज वी गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स in so less time that after maybe 5-6 years of service you become district magistrate of a district when you are so young, or you become SP. So you handle so many diverse things that you cannot even imagine. So इससे आपकी पर्सनालिटी भी एकदम बहुत डाइवर्स और बहुत डेवलप्ड हो जाती है. तो इट्स वर्थ, दो इट्स चैलेंजिंग बट इट्स वर्थ इट. थैंक यू. Thank you, sir. The other question that I have, it's from a person, I think he is working in a corporate or so,
And the person asked that, how do I prepare for UPSC CSC while working? What kind of optional is best suitable for such candidates? It's actually answer, if I try to answer this question, its answer will be very long, because you have asked that how to prepare for UPSC, for which I have written a book even on this thing, ki all about UPSC civil services exam. And someone in the questions, some participant was asking about the name of my book. Actually, I forgot to mention the name. It is in Hindi it is Mujhe Banna hai UPSC Topper, and in English it is all about UPSC civil services exam. It's available on Amazon as well as on Flipkart. And for motivation, I have written one more book, which is Ruk Jana Nahi in Hindi and Don't You Quit, The Magic of Untiring Efforts in English, from Westlife. Yes, sir. Thank you. So the other question is for the student. He is asking, how should one prepare for Hindi literature as an option? Again, the answer is going to be very low, but still, I would like to answer this question. Hindi literature is a very good optional subject. If you can read and write Hindi correctly and properly, then you can go for it. You should read the history of Hindi literature thoroughly, और उसके बाद आप जो है उसका जो सिलेबस है उसमें गद्य और पद्य जो है उनकी जो टेक्स्ट बुक्स है उनको अच्छे से पढ़ लें, बार बार पढ़ें. और हिंदी लिटरेचर के लिए तो दृष्टि के नोट्स भी काफी अच्छे हैं, तो वो आप पूरा उनको अच्छे से पढ़ लें, अंडरलाइन करके तैयार कर लें, क्योंकि आंसर बहुत छोटे छोटे लिखने होते हैं, तो उसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा दिया होता है. आप उसको पढ़ लें और पढ़ करके अपने हिसाब से कुछ या तो नोट्स बना लें या फिर उसी में अंडरलाइन करके उनको थोड़ा रिवाइज कर लें. तो ये है. और बाकी व्याख्या वाला पोर्शन है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा. नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता सबको बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आप करेक्ट कॉन्टेक्स्ट समझ पाए. Yes, sir. Thank you. So maybe we can take some one or two more questions. This could be the second last question. And the person asked that you started preparing for this examination very late, and many aspirants have this tendency. There is this rumor that UPSC prefers young candidates. Is this true or just a myth or hearsay sort of? As we cannot say this. There is no data that proves that UPSC prefers young candidates, but it's I think पहले तो मेन जो आपका सिलेक्शन होता है वो तो मेंस के मार्क्स पे होता है. आउट ऑफ 2025 मार्क्स, 275 मार्क्स आर फॉर इंटरव्यू एंड रिमेनिंग 1750 मार्क्स आर फॉर मेंस. सो मेंस में किसी को क्या पता चलेगा कि आप यंग हो या यंग नहीं हो, है ना. तो इसलिए ये कहना थोड़ा मेरे ख्याल से ये कंक्लूजन डिराइव करना ठीक नहीं होगा. इंटरव्यू में हो सकता है कि फर्क पड़े इसका कुछ, पर वो डिपेंड करेगा हाउ डू यू टैकल द क्वेश्चन एंड हाउ डू दे जज योर पर्सनालिटी. बाकी तो पूरी एक 21 to 32 की ऑलरेडी उन्होंने रेंज बनाई हुई है, तो मेरे ख्याल से इस पे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. बट स्टिल इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू इफ यू एंटर द सर्विस at a young age, because then your career will be longer in comparison to those who entered the service at a later age. So this is this last question, and this person has posed different things about different. He's asking about different things, but maybe if you could just shed some light on how to tackle economy, and if you could give some tips on how to write a good essay in the mains examination. Again, it's a very good question, and I need at least 1 hour to explain how to write a good essay. We can plan a session on writing essay, because it's my favorite topic, and I had scored highest marks in my attempt in essay paper. Still, I would like to answer this question in a few points. One is first point is choose your topic wisely. जिस टॉपिक से आप सबसे ज्यादा फेमिलियर हो वही टॉपिक चुनने के बाद में उसकी एक आउटलाइन 10-15 मिनट लगा के उसकी एक आउटलाइन बना लें. Try to develop the essay in such a way that you are able to cover as much as dimensions you can cover. Social, economic, cultural, political, scientific, all the dimensions if you can cover, then it will look like a very good essay. Plus, you must write in an
organized and orderly manner. It should not be like कि haphazard way में आप ऐसे लिख रहे हैं. Flow होना चाहिए. There should be some correction between the two paragraphs, and your conclusion should be kind of an essence of the topic. And there has to be some progressive solution also to the problem. It's not that you just find out the problems, you should also suggest some solutions. So I think this is a nice way of tackling handling the essay paper. Besides, you can use small paragraphs, you can use simple words, you can use relevant quotations, you can use relevant examples, relevant data, but it should not be like GS paper. It should be more general than technical. Essay paper should be more general. And आपके जो भी पढ़ाई है, जो भी आपके करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, जो भी आप ने अब तक आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो सब मैटर करता है. तो इसलिए ऐसे में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हर हफ्ते एक ऐसे लिखने की हैबिट डालो. एक ऐसे 1.5 आवर का होता है, हर हफ्ते आप एक ऐसे लिखेंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन आपको लिखना है. तो आप धीरे 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 1 by 1 अच्छा करते जाएंगे, और जब आप 10 ऐसे लिख चुके होंगे तो 11वां ऐसे बहुत अच्छा. Yes, sir. Thank you. So, would you like to share some points for economy as well? Actually, sorry. Economy, again, you need to find out a good and authentic book for economy. Then, firstly, you need to go through this book thoroughly, and after that, since you are already reading a daily newspaper and you must be reading the economy page of the newspaper, so you can corroborate things like that. And you must also be reading one monthly current affairs magazine where you must be reading articles on economic development or economic issues. So क्या होगा कि जब आप इकोनॉमी की बुक पढ़ लेंगे, डेली न्यूज़पेपर में इकोनॉमी के आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे और मैगजीन में इकोनॉमी के आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, तो आप सबको रिलेट करने लग जाएंगे. तो दैट्स व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. फिर आपका एनुअल इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो आप पढ़ लेंगे. So I think this will work, and you can find some good video lectures on YouTube also about Indian economy. I think इतना कर लेंगे तो हो जाए. Thank you, sir. It was indeed a pleasure to hear from you on such a beautiful topic. And I also give a special thanks for answering all these different questions which were posed by the panoply of students across the Indian colleges. So now I would like to take a moment to express the vote of thanks on behalf of Nishtha Society to all those who have helped to make this session such a grand achievement. First and foremost, I would like to thank Nishant sir for being with us by taking his time out amidst of his busy schedule. Your address was truly inspirational for the student community of Hansraj College and other prominent colleges across India. I wish also to record our sincere appreciation to our esteemed principal, Professor Dr. Rama ma'am, and convener, Mr. Mahendra Prajapati sir, who have always shown keen interest in associating themselves for the activities of the society. I also express my regards for our team members and participants who chose to go live with us, always elevating our morale and zeal to come up with something ingenious each time. Last but not the least, I express my gratitude once again to you, sir. It would be a pleasure for us to listen from you in person as and when the situation improves. So just one more thing, while looking at your biography, and I was researching about that, I came across few lines of Dushyant Kumar, a renowned Hindi poet, which I believe have always motivated you in your journey of your struggle. It was mentioned in one of the interviews. So I looked for those 4 lines, and I would like to sort of recite those 4 lines for our audience on a concluding note. So yeah. Please go ahead. Thank you, sir. Yeah. इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है. एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है. Our first session of Avikshit has hereby come to an end now. I thank you all for spending your valuable time here. Stay tuned for our upcoming session with none other than Mr. Safin Hassan sir. And for more updates, you can follow us on our social media. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you.